Hello everybody, welcome back to my channel Literacy Legacy, and today I will be teaching you and revising you the section 77 to 87 of the Companies Act 2013, which relates to the registration of charges. So as you know, the Companies Act having various chapters, and these chapters are a bundle of various sections which relates to a particular topic. So chapter 6 of the Companies Act relates to registration of charges, which deals with section 77 to 87 of the Companies Act. And as I had earlier told you, that every chapter of the Companies Act having various sections is also followed by the rules. So for that matter, if in on MCA you are in the Act section, you can refer the rules from here. And here if you can see the chapter 6 of the Companies Act relates to registration of charges. So any additional provisions with respect to the sections and the chapter, we will be referring it here. So what I have done is I have made a gist of section 77 to 87 of the Companies Act 2013 for you from the exam point of view. So what you can do is you can read once the entire provision of the Companies Act, and simultaneously you can go through the summary notes which I have prepared for you, and you can practice answer writing from your examination point of view. So let's get started. So our first section is section 77, which deals with the duty to register charge. So it is a duty to register charge. So let's get started. So every company that creates a charge, whether either by way of mortgage or pledge on its property assets located in India or outside India, must register it with the registrar of companies within 30 days. So within 30 days of instrument creating charge. Okay, instrument creating charge. अगर आपको इफ़ यू हैव एनी एम्बिगिटी विद रिस्पेक्ट टू 30 डेज फ्रॉम वेयर, सो जो भी आप जिस भी प्रॉपर्टी से जिस भी इंस्ट्रूमेंट से आप इधर बाय ऑफ मॉर्गेज डेड बाय वे ऑफ हाइपोथिकेशन यू आर क्रिएटिंग द चार्ज, वहाँ से आपको 30 डेज़ के अंदर अपना चार्ज क्रिएट करना है विथ ROC फॉर्म. चार्ज क्रिएट किस फॉर्म में होता है हम नीचे रूल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि जनरली आपके सामने क्या लिखा होता है कि एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स. ओके, सो रूल्स में क्या प्रिस्क्राइब्ड है कि चार्ज आपको क्रिएट करना है फॉर्म नंबर CHG 1 में. अगर वो कौन सा है, कौन सा आपका इंडेमनिटी है, सॉरी इंडेमनिटी बोल रही मैं, इंडेटनेस है, अगर वो बैंक लोन है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ है तो CHG 1 एंड CHG 9 इन केस ऑफ डिबेंचर्स. ओके, इफ कंपनी इज इशूइंग डिबेंचर्स एंड वो पैसा उठा रही है एंड वो अपने एसेट्स को मॉर्गेज या हाइपोथिकेट कर रही है, इन दैट केस वी हैव टू फाइल CHG 9 विद द ROC indicating that this charge is created with respect to the debentures issued by the company. Okay, इसमें सारे particulars of charges होते हैं. इंस्ट्रूमेंट जो भी आपका क्रिएट करते हो वो आपको अटैच करना होता है. सिग्नेचर उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट है आपका उसमें बोथ द पार्टीज़ की साइंस होती हैं, कौन कौन, कंपनी एंड द चार्ज होल्डर जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट हो रहा है. प्रिस्क्राइब्ड फीस हमको फाइल करनी होती है विद द ROC. For charges created after 2019 amendment, ROC may allow registration within 60 days of charge creation with additional fees. इसके पहले 300 डेज़ वाला प्रोविज़न था विच आई हैव नॉट कवर्ड. आई एम ओनली कवरिंग द रिसेंट प्रोविज़न विथ रिस्पेक्ट टू द चार्ज क्रिएशन, तो डैट वोंट बी मेकिंग एनी कन्फ्यूजन्स इन योर माइंड. सो अगर मान लो 30 डेज़ में नहीं हो पा रहा है चार्ज क्रिएशन, तो आपको फर्दर 60 डेज़ मिलेगा फ्रॉम क्रिएशन डेट ओनली. ओके, मतलब कि आपको फर्दर 60 डेज़ नहीं मिल रहा है, आपको 30 + 30 डेज़ मिल रहा है. दिस 60 डेज़ इज़ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ओनली. ओके, तो 30 + 60 मतलब कि 30 डेज़ इंक्लूडिंग आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है. इसके साथ आपको क्या लगेगा, एडिशनल फ़ीस लगेगी जो आपको ROC को पे करनी होगी. अगर इसमें भी नहीं हो पाया तो फर्दर 60 डेज़ मिल रहा है आपको ये वाले 60 डेज़ से. ओके, 30 + 30 वाले 60 डेज़ से आपको 60 डेज़ मिल रहा है इन टोटल, मतलब आपको 120 डेज़ का टाइम मिलता है चार्ज क्रिएट करने के लिए. और जब आपको ये वाला लगेगा तब आपको यहाँ पे एड वैलोरम फीस लगेगी. ये वाले फर्दर 30 डेज़ में आपको एडिशनल फ़ीस लगेगी, इसमें आपको एड वैलोरम फीस लगेगी. तो याद रखना एग्जाम में जब भी आप लिखोगे तो 30 डेज़ है, यहाँ पे 60 डेज़ फ्रॉम द क्रिएशन है, मतलब एडिशनल 30 डेज़ है, और यहाँ पे 60 डेज़ फर्दर है आपको, विच मीन्स टोटल 120 डेज़ हैव बीन अलाउड टू अस. ओके, सो प्रोटेक्शन ऑफ
प्रायर राइट्स वाला प्रोविजन आ जाता है यहाँ पे। तो एनी राइट इन द प्रॉपर्टी बिफोर द चार्ज इज रजिस्टर रिमेन प्रोटेक्टेड, रजिस्ट्रेशन डज नॉट अफेक्ट देम रेट्रोस्पेक्टिवली। तो अगर आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो तो उसके ऊपर पहले अगर आपका प्रॉपर्टी पे कोई भी राइट था तो डेट वोंट बी गेटिंग अफेक्टेड। यहाँ पे आरबीआई एग्जेम्प्टेड चार्जेस कुछ होते हैं, दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू सर्टेन चार्जेस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई। अब ये हो गया सबसेक्शन वो, सेक्शन 77 सबसेक्शन 1 हो गया। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आप चार्ज शीट कर रहे हो तो आपको आरओसी क्या इशू करता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एज यू आर वेरी मच अवेयर। सर्टिफिकेट ऑफ, अगर आप आरओसी को इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट भेजते हो तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है, वैसे ही ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। कौन से फॉर्म में देता है मैं आपको रूल्स में वहाँ पे कंबाइंडली एक जगह पे बता दूंगी। व्हाट यू कैन डू इज़, आप यहाँ पे जब भी पढ़ रहे होगे आपको ऊपर वहाँ पे मेंशन करना है कि क्रिएशन का फॉर्म कौन सा है, उसका सर्टिफिकेट किस फॉर्म में आता है, तो डैट वी विल बी अ हैंडी एंड रिविजन फॉर यू। ओके, तो सबसेक्शन 2 हो जाता है कि व्हेन द चार्ज इज रजिस्टर्ड आरओसी इशूज अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू कंपनी एंड द चार्ज होल्डर। ओके, नेक्स्ट इज सबसेक्शन 3 चार्ज वैलिडिटी अगेंस्ट लिक्विडेटर एंड क्रिएटर्स। अगर अनरजिस्टर्ड होगा तो वो अनइन्फोर्सेबल हो जाएगा, आपको वहाँ पे लिक्विडेशन के टाइम पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा चार्ज क्रिएशन का। ऑल्दो आपके ऊपर जो प्रॉपर्टी है, जो आपकी इंडेटनेस है वो मेंटेन रहेगी, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। सेक्शन 78 व्हेन द कंपनी फेल्स टू रजिस्टर द चार्ज, जब कंपनी रजिस्टर नहीं कर पाती है चार्ज, उस केस में क्या होता है, इफ़ अ कंपनी फेल्स टू रजिस्टर चार्ज विद इन 30 days पीरियड mentioned under section 77 subsection 1, the person in whose favor the charge is created, the lender or charge holder can apply directly to the registrar of the companies। ये ड्यूटी किसकी होती है, जो भी पर्सन जो भी हमारा बोरोवर है उसकी लाइबिलिटी होती है ये। इसके अगर मान लो वो नहीं करता है प्रिस्क्राइब टाइम में अगर चार्ज क्रिएशन, तो चार्ज होल्डर ऑन इट्स ओन डिस्क्रिप्शन आई मीन द कंपनी कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। उसका प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है कि उसको भी एप्लीकेशन फाइल करनी होगी अलॉन्ग विथ चार्ज इंस्ट्रूमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। आरओसी विल गिव अ नोटिस टू द कंपनी, वेट करेगा 14 days के लिए, रजिस्टर करेगा चार्ज एंड उसको सफिशिएंट कॉज भी शो करना होगा। राइट टू रीइंबर्समेंट, अगर मान लो ये बोरोवर के पार्ट का कंप्लायंस था, अगर वो नहीं कर रहा है, चार्ज होल्डर अपने ओन डिस्क्रिप्शन पे अगर अप्लाई कर रहा है फॉर एप्लीकेशन क्योंकि उसने नहीं किया था, तो उस केस में उसका राइट ऑफ रीइंबर्समेंट यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पे आपके लिए समरी भी मैंने बनाई हुई है, तो यू कैन ऑल्सो रेफर कि वन लाइनर में हर एक सेक्शन की समरी क्या आती है, तो यू कैन ऑल्सो रीड दोज समरी। ओके, सेक्शन 79 क्या बोलता है, एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन 77 टू स्पेसिफिक केसेस। दिस सेक्शन क्लैरिफाइज दैट द रूल ऑफ सेक्शन 77 अबाउट रजिस्टरिंग द चार्ज ऑल्सो अप्लाई इन द फॉलोइंग 2 एडिशनल सिनेरियोज। कौन कौन से सिनेरियोज में, एडिशनल सिनेरियोज में क्रिएशन का प्रोविजन अप्लाई होता है। एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑलरेडी सब्जेक्ट टू अ चार्ज, मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उस पर ऑलरेडी किसी प्रॉपर्टी ऑलरेडी कोई चार्ज क्रिएटेड था, तो उस केस में भी हमारे ऊपर चार्ज क्रिएशन का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग चार्ज, अगर मान लो आपने CAG 1 या CAG 9 फाइल करके कोई भी आपने ROC से रजिस्ट्रेशन ले लिया चार्जेस का, फर्दर आपको कुछ पार्टीज़ का आपका खुद का डिस्कशन हुआ बिटवीन द कंपनी एंड द चार्ज होल्डर, एंड यू आर ऑफ द व्यू कि आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में अल्टरेशन करना है, हियर आई हैव राइट टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ अल्टरेशन है, या फिर आपने अमाउंट इंक्रीज़ किया है, टाइम इंक्रीज़ किया है, तो उस केस में मॉडिफिकेशन होता है, तो उस केस में भी सेक्शन 77 एप्लीकेबल होता है। तो ये वाले 2 सिनेरियोज आपको क्योंकि पता होना चाहिए कि इस केस में भी चार्ज क्रिएट होता है। अगर एक्विजिशन ऑफ ऑलरेडी विच वाज ऑलरेडी सब्जेक्ट टू अ चार्ज, उस पर अगर प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हो तब, और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज हो रहा है तब। इसका यहाँ पे समरी दिया हुआ है, यू कैन गो थ्रू इट। सेक्शन 80 क्या बोलता है, डीम नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड चार्जेस। मान लो अगर वंस अ चार्ज इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 77, सो एनी पर्सन हु लेटर एक्वायर्स द प्रॉपर्टी एसेट्स एनी अंडरटेकिंग और any share or interest in them will be deemed to have notice of the charge from the date of registration। तो वो ये excuse नहीं दे सकता that he was not aware of the charge already created on the property। okay, यहाँ पे summary you can go through it। section 81 क्या बोलता है, register of charges to be kept by the registrar। यहाँ पे the registrar shall in respect of every company keep a register containing particulars of the charges registered under this chapter in such form and in such manner as may be prescribed। A register kept in pursuance of this section shall be open to inspection by any person on payment of such fees as may be prescribed। सेक्शन 82 क्या बोलता है, रिपोर्टिंग
सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, मान लो अब आपने लोन लिया था, आपने उसके फेवर में चार्ज क्रिएट किया अपनी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, अब आपने पैसा दे भी दिया, अब यू हैव पेड बैक द अमाउंट, नाउ यू हैव टू डू इज सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज कि हाँ मैंने अमाउंट सेटिस्फाई कर दिया, आई हैव रीपेड द इंटायर अमाउंट आई ओड. ओके, सो ड्यूटी टू इन्फॉर्म आरओसी यहाँ पे हमारी ट्रिगर होती है. So when a register charge is fully paid off or satisfied, the company must inform the registrar of companies within 30 days from the date of such payment or satisfaction in prescribed form. फॉर्म कौन सा होता है? CHG4. मैं नीचे आपको बताने वाली हूँ, तो you won't be worrying about the form numbers. Okay, if the registrar of companies receives satisfactory evidence even without intimation from the company that debt has been fully or partially paid, or a part of the charged property is released or no longer belongs to the company, the ROC may enter a memorandum of satisfaction fully or partially, or record the part of the property is released from the charges. Mandatory communication क्या होता है? After making such entry, the ROC may inform the affected party such as company and the charge holder within 30 days. Section 84 क्या बोलता है? Reporting appointment एंड सजेशन ऑफ रिसीवर और मैनेजर. सम केसेस में हम रिसीवर और मैनेजर भी अपॉइंट करते हैं फॉर द प्रॉपर्टी ऑन विच चार्ज इज क्रिएटेड. सो इफ अ पर्सन गेट्स अ कोर्ट ऑर्डर टू अपॉइंट a receiver or manager or appoint one under a contractual power like under a loan agreement, they must inform the company, the ROC, within 30 days of the appointment and submit a copy of the order or instrument. The ROC will then register the details of the appointment in the register of charges upon repayment of fees, upon the payment of fees. When the receiver or manager steps down, the appointed person must also notify the company and the ROC when they ceases to hold the office, and the ROC will record the cessation in the register. Okay, दोनों की ड्यूटी है ये. सेक्शन 85 मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्जेस. रजिस्टर ऑफ चार्जेस हम CHG7 में मेंटेन करते हैं, ये याद रखना, नीचे मैं बताने वाली हूँ. तो ये सेम एज लाइक अदर रजिस्टर्स विच वी मेंटेन अंडर द कंपनीज एक्ट, ये होता है हमारा रजिस्टर ऑफ चार्जेस. तो ये आपको मेंटेन करना होता है. सो एवरी कंपनी, ओके, नो लिमिट एज सच, एवरी कंपनी मस्ट मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ चार्जेस एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस. द रजिस्टर मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो इसमें दिया होगा. Include all the charges and floating charges affecting any property, asset, undertaking of the company and contain all the prescribed particulars. Additionally, a copy of the instrument creating such charge shall also be kept at the same location. Either DOH, deed of mortgage, deposit of title deeds, etc. मेमोरेंडम ऑफ एंट्री, जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, जिस भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप क्रिएट कर रहे हो चार्ज, तो वो आपको यहाँ पे रजिस्टर ऑफिस पे रखना है. 1 सेकेंड. सो पब्लिक इंस्पेक्शन ऑफ चार्ज रजिस्टर, you can read this section as well. Section 86 to 87 is like very generic section. You can also go through it from the MCA or the Companies Act, आपका जो भी book है. This is I have not covered it with respect to the exam point of view. So only those which are mandatorily from the exam point of view, I have covered those provisions only. Okay, so यहाँ पे अगर आप रूल्स में आ जाओगे तो रूल्स से कुछ मिस आउट ना हो, तो मैंने यहाँ पे रूल्स भी आपके लिए नोट डाउन कर लिया है समराइज वे में. सो यहाँ पे रजिस्टर ऑफ क्रिएशन ऑफ और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज कैसे होगा. अगर आपने CHG1 में चार्ज क्रिएट किया है फॉर बैंक लोन्स एंड CHG9 में किया है फॉर डिबेंचर्स, ओके, तो ये आपके फॉर्म में हो जाएंगे. इसके लिए ये पूरा आप पढ़ लेना, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्म नंबर्स के बारे में बता रही हूँ. ओके, यहाँ पे देखो अगर CHG1 एंड CHG9 फॉर डिबेंचर्स एंड ये है बैंक लोन्स, इसका सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म में आपको मिलेगा? CHG2 में. ठीक है, अगर मॉडिफिकेशन हुआ था तो आपको फॉर्म सर्टिफिकेट किस में मिलेगा? CHG3 में मिलेगा. दिस इज़ फॉर क्रिएशन के लिए अप्लाई किया था आपने, तो उसका सर्टिफिकेट आपको किस में मिलेगा? दिस इज सर्टिफिकेट जो ROC आपको देगा. ओके, एंड दिस इज द फॉर्म जो आपको ROC को देना है, कौन से फॉर्म में आपको फाइल करना है. ठीक है,
तो ये हो गया आपके सर्टिफिकेट्स। CHG 4 में आपका सेटिस्फेक्शन आता है, वी ऑलरेडी डिस्कस। CHG 5 में आपका उसका सर्टिफिकेट आएगा। अगर आपने रिसीवर अपॉइंट किया तो उसमें आपको CHG 6 में इंटीमेट करना है। कंपनी का रजिस्टर ऑफ चार्जेस CHG 7 में मेंटेन होता है। फिर रेटिफिकेशन इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस ऑन अकाउंट ऑफ ओमिशन और मिसस्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स इन चार्ज प्रीवियसली रिकॉर्डेड इन एक्सटेंशन ऑफ टाइम इन फाइलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। CHG 8 में उसके लिए एप्लीकेशन देनी होगी आपको। तो लेटर्स यहाँ पे मैं आपको समरी बना के दे देती हूँ। यहाँ पे CHG 1, CHG 9 creation forms, CHG 2 एंड CHG 2 में इसका सर्टिफिकेट आएगा। ठीक है, सॉरी, इसका सर्टिफिकेट आएगा। अब अगर आपको मॉडिफाई भी करना है क्रिएशन के लिए, क्रिएशन हो गया, अगर मॉडिफाई भी करना है तो कौन सा फॉर्म जाता है? CHG 1, CHG 9 मॉडिफिकेशन। उसका सर्टिफिकेट आपको किस में मिलेगा? CHG 3 में। ओके, CHG 4 में आपका सेटिस्फेक्शन होता है। आपको सर्टिफिकेट किस में मिलता है? CHG 5 में। रिसीवर अपॉइंट हो रहा है तो CHG 6 में इंटीमेशन जाता है। CHG 6 में रिसीवर वाला हमारा अपॉइंटमेंट होता है, रिसीवर का। एंड CHG 7 में आपका ओवरऑल यहाँ पे बनता है रजिस्टर ऑफ चार्जेस। ओके, सो इसको आप एक टेबुलर फॉर्म में बनाने की कोशिश करना। CHG 1, CHG 9 फॉर क्रिएशन, CHG 2 में उसका सर्टिफिकेट। यहाँ पे फॉर्म्स है ना, ये सारे फॉर्म फाइलिंग विथ ROC, फॉर्म्स विथ ROC, और यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट्स। ओके, तो CHG 1, CHG 9, CHG 2 is the certificate, CHG 1, CHG 9 for modification, CHG 3 is the certificate, CHG 4 is for satisfaction of charge, CHG 5 is the certificate, CHG 6 is for receiver, एंड रजिस्टर ऑफ चार्जेस इज़ फॉर CHG 7, जिसमें आपको ओवरऑल फॉर्मेट में आपका आप रजिस्टर मेंटेन करोगे। सो दिस इज़ द समरी, यू कैन जस्ट गो फॉर, मतलब गो थ्रू द सेक्शन 1 पूरा ओवरऑल एक बार रीड करना, एंड देन यू हैव टू गो थ्रू द समरी एंड once try to write the answers on your own. Okay, frame one question from the section and practice those in your notebooks. You will definitely be able to tackle the questions of charges if any comes within the examinations.
and do let me know in the comments if you have any further queries with respect to the Companies Act or any subject in the your curriculum, either CACS or CMA with respect to company law. I will be there to help you out. I will also be coming with